Hello children, how are you? Hope you all are doing well. For last few days we have been learning subtraction. In previous videos we had learned subtraction without regrouping, subtraction with regrouping. In this video today we will learn properties of subtraction, relation between addition and subtraction facts, checking addition by subtraction, and checking subtraction by addition. In properties of subtraction, we will learn subtracting a number from itself, subtracting 0 from a number, order property, and subtraction of 1, 10, 100 or 1000 from a number. So first of all, let's learn subtracting a number from itself. When a number is subtracted from itself, the difference is 0. जब किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस कर दिया जाता है तो डिफरेंस, तो आंसर 0 होता है. Suppose you have 25 pencils and I take all the 25 pencils from you. So how many pencils will be left with you? आपके पास कुछ पेंसिल्स बचेंगी. अगर आपके पास 25 पेंसिल्स थी और सारी की सारी 25 की 25 पेंसिल्स मैंने ले ली आपसे, तो आपके पास पेंसिल्स बचेंगी? नो, यू विल बी लेफ्ट विद नो पेंसिल्स और 0 पेंसिल्स. So let's take some examples. Let's subtract 5269 from itself, means 5269 में से 5269 को ही माइनस करते हैं and what will we get in result? We will get 0 because 9 minus 9 is 0, 6 minus 6 is 0, 2 minus 2 is 0 and 5 minus 5 is also 0. So when we subtracted 5269 from 5269 itself, we got 0 as difference. Now let's take 3184. Let's subtract 3184 only from it. So 4 minus 4, 0, 8 minus 8, 0, 1 minus 1, 0, 3 minus 3, 0. So after subtracting 3184 from itself, we got 0 difference. Similarly, if we take 9782 and we subtract the same number from it, we get again 0. 2 minus 2, 0, 8 minus 8, 0, 7 minus 7, 0, 9 minus 9, 0. So 9782 minus 9782 is equal to 0. Now let's learn subtracting 0 from a number. When 0 is subtracting from a number, the difference is the number itself. Now, if you have 25 pencils and I take 0 pencils from you, means I have not taken any pencil from you. आपके पास 25 pencils हैं और मैंने उसमें से एक भी pencils आपसे नहीं ली. मैंने आपसे मीन्स 0 पेंसिल्स ली, तो आपके पास कितनी पेंसिल्स होंगी अभी भी? यस, यू विल हैव 25 पेंसिल्स विद यू. जितनी आपके पास थी उतनी की उतनी 25 की 25 होंगी आपके पास. नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स. लेट्स सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम 5269. वी विल गेट 5269 ओनली इन रिजल्ट. If we subtract 0 from 3184, we will get 3184 only in answer. If we subtract 0 from 9782, we will get
9782 ओनली एज डिफरेंस। मतलब आप किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करिए, आपके पास वही सेम नंबर आंसर होगा। When you subtract 0 from a number, the difference is the number itself. Now let's learn order property in subtraction. If you remember, we had learned order property in addition also. उसमें हमने पढ़ा था कि नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में रख के हम ऐड कर सकते हैं, आंसर विल रिमेन सेम इन ईच ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में हम रखे नंबर्स को, आंसर हमारा हमेशा सेम होगा। बट इन सब्ट्रैक्शन यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। सब्ट्रैक्शन में आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो। द बिगर नंबर शुड ऑलवेज बी रिटन फर्स्ट। हमेशा आपको सब्ट्रैक्शन करने के टाइम बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा नंबर बाद में लिखना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज यू आर having numbers 3124 and 1213। तो आप सब्ट्रैक्शन के टाइम 3124 पहले लिखेंगे और उसमें से आप 1213 माइनस करेंगे, तो आपको डिफरेंस जो मिलेगा दैट विल बी 1911। If you try to subtract 3124 from 1213, अगर आप 1213 में से 3124 माइनस करने की कोशिश करेंगे तो इट विल नॉट बी पॉसिबल। आपके पास 25 पेंसिल्स हैं और मैं आपसे 75 पेंसिल्स मांगूं तो क्या आप मुझे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। सो इट विल नॉट ever be possible to subtract a bigger number from a smaller number। कभी भी हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं कर सकते हैं। इन सब्ट्रैक्शन यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। द बिगर नंबर शुड ऑलवेज बी रिटन फर्स्ट। Now let's learn the subtraction of 1, 10, 100 or 1000 from any given number. When we subtract 1 from any number, we get the predecessor of the number। जब हम किसी नंबर में से 1 माइनस करते हैं तो हमें उसका प्रीडिसेसर रिजल्ट में मिलता है, उससे पहले आने वाला नंबर हमारा आंसर होता है। लेट्स सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3124। तो जब 3124 में से हम 1 माइनस करेंगे दैट मीन्स हम 1 लेस करेंगे, तो वी विल गेट 3123 इन रिजल्ट। मीन्स सिर्फ 1 प्लेस का डिजिट हमने 1 लेस किया है, बाकी सारे डिजिट्स हमारे सेम है। When we subtract 10 from any number, the digit in the tens place decreases by 1, whereas the other digits remain same। जब हम किसी नंबर में से 10 माइनस करते हैं तो टेंस प्लेस का डिजिट जो है वो 1 लेस किया जाता है, बाकी सारे डिजिट्स सेम रहते हैं। तो 3124 में से 10 माइनस करके देखते हैं, we get 3114 in result। टेंस प्लेस पर 2 था, 2 में से हमने 1 लेस किया तो हमें 1 मिला, बाकी डिजिट्स हमने सेम लिखे, so we got the answer 3114। When we subtract 100 from any number, the digit in the hundreds place decreases by 1, whereas the other digits remain same। जब किसी भी नंबर में से हम 100 माइनस करते हैं तो हंड्रेड्स प्लेस का डिजिट 1 लेस किया जाएगा, बाकी सारे डिजिट सेम रहेंगे। तो 3124 में से जब हम 100 लेस करेंगे तो क्योंकि हंड्रेड्स प्लेस पर 1 प्रेजेंट है तो
उसको जब हम 1 लेस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। 1 से पहले 0 आता है ना, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 3124 minus 100 is 3024. Now, when we subtract 1000 from any number, the digit in the thousands place decreases by 1, whereas the other digits remain same. जब हम 1000 माइनस करते हैं किसी भी नंबर में से, तो थाउजेंड्स प्लेस वाला डिजिट हम 1 लेस करते हैं, बाकी सारे डिजिट्स सेम रहते हैं। तो 3124 में थाउजेंड्स प्लेस पर 3 है, तो 3 में से जब हम 1 लेस करेंगे तो वी विल गेट 2। सो आवर आंसर विल बी 2124। 3124 minus 1000 is 2124. Now, after learning properties of subtraction, let's learn relation between addition and subtraction facts. For each addition fact, we can write 2 subtraction facts. किसी भी एक एडिशन फैक्ट के लिए हम उसके 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स लिख सकते हैं। Now let's understand it with the help of an example. Write 2 subtraction facts for the following, and the numbers are 4627 plus 2988, that is equal to 7615. 4627 और 2988 का सम है 7615. This is the addition fact we are given. We have to write 2 subtraction facts for this. तो subtraction fact लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर, जो 2 नंबर्स का सम दिया हुआ होता है हमें, वो सबसे बड़ा नंबर होता है, तो सबसे बड़े नंबर को हम सबसे पहले लिखते हैं, और जिन 2 नंबर्स को ऐड किया जा रहा होता है, जो 2 एडेंड्स होते हैं, उनमें से कोई भी एक एडेंड हम उस नंबर में से माइनस करते हैं। तो यहाँ हमने वो एडेंड लिया है 2988, तो 7615 में से हम पहले 2988 को माइनस करेंगे। Our result will be 4627. तो हमारा फर्स्ट सब्ट्रैक्शन फैक्ट क्या बना? 7615 minus 2988 is equal to 4627. Next subtraction fact will be 7615 फिर से हम पहले लिखेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़ा नंबर सबसे पहले लिखा जाता है। अब क्योंकि फर्स्ट सब्ट्रैक्शन फैक्ट में हमने 2988 लिया था माइनस करने को, तो अदर एडेंड इज 4627, तो 7615 में से अब हम 4627 को माइनस करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 2988। तो हमारा सेकेंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट क्या है? 7615 माइनस 4627, that is equal to 2988. तो हमने क्या सीखा कि एडिशन फैक्ट जो हमें गिवन होता है, उसमें सम में से अगर हम एक एडेंड को माइनस करेंगे तो रिजल्ट में हमें दूसरा एडेंड मिल जाएगा। ये हमारा सब्ट्रैक्शन फैक्ट होगा। तो इसी मेथड को यूज करते हुए वी विल लर्न चेकिंग एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन। To check addition, we subtract one of the addends from the sum. If their difference is equal to the other addend, then the answer is correct. Addition check करने के लिए हम सम में से एक एडेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर डिफरेंस हमारा दूसरे एडेंड के इक्वल है, बराबर है,
तो हमारा आंसर करेक्ट होता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Find the sum and check your answer using subtraction, and numbers given are 3583 plus 2808. तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और सम पता लगाएंगे. 3583 and 2808. First of all, we will arrange them in columns of thousands, hundreds, tens and ones. तो इनको ऐड करने के बाद हमें आंसर मिला 6391. नाउ लेट्स चेक आवर आंसर. 6391 में से हम एक एडेंड को 2808 को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद हमारा आंसर है 3583, which is our other addend. That means our answer is correct. Same way, children, we can check subtraction by addition. जैसे हमने subtraction करके addition को चेक किया था, ऐसे ही हम addition करके subtraction को चेक कर सकते हैं. How? Let's see. To check subtraction, we add the difference and the subtrahend. If their sum is equal to the minuend, then the answer is correct. But सबसे पहले हम ये समझते हैं कि minuend क्या होता है, subtrahend क्या होता है और difference क्या होता है. जिन दो नंबर्स को हम माइनस कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है, उन दो नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है दैट इज minuend और स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड subtrahend. और इन दोनों को माइनस करके जो हमें आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंस. तो सबसे बड़ा नंबर जिनको हम माइनस कर रहे हैं दो नंबर्स को, उनमें से सबसे बड़ा नंबर minuend, छोटा नंबर subtrahend और उनको माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो डिफरेंस कहलाता है. तो minuend is the bigger number, subtrahend is the smaller number and difference is the result we get after subtraction. So to check subtraction we add the difference and the subtrahend. Subtraction check करने के लिए हम difference और subtrahend छोटे नंबर को ऐड करते हैं. डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन को ऐड करने के बाद अगर हमारा आंसर minuend के बराबर आता है तो हमारा आंसर करेक्ट है. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फाइंड द डिफरेंस एंड चेक योर आंसर यूजिंग एडिशन. We are given the numbers 4627 minus 2988. So first of all we will arrange the numbers in columns of thousands, hundreds, tens and ones, and we will start subtracting from ones, then we will subtract tens, then hundreds and then thousands. So in answer we got 1639. 4627 में से 2988 माइनस करने के बाद हमें मिला 1639. तो लेट्स चेक आवर आंसर कि हमने ठीक से सब्ट्रैक्ट किया या नहीं किया. तो सबसे पहले we will write the difference. सबसे पहले हम difference लिखेंगे that is 1639. Next we will write the subtrahend. Subtrahend है हमारा 2988. अब difference और subtrahend को जब हम add कर रहे हैं we got 4627. difference हमारा 1639, subtrahend 2988. इन दोनों को जब हमने ऐड किया we got the sum 4627. that is equal to minuend. 4627 minuend है. तो that means our answer is correct. So children, I hope you have understood all the concepts today. Keep practicing. Stay home. Stay safe. Thank you.